Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our economic entomology paper. In this video lecture, we're going to talk about the household pest termites. So first thing what we will talk about is morphology of termites. Termites are basically social insects. They prefer to live in a colony. That's why they are having different castes and they show the polymorphism characteristic. Polymorphism क्या होता है? Polymorphism means they have different morphological characters on the basis of their different castes and their works are distributed. So there are, in some colonies there are 5 members and in some species there are 6 members in termite colony. So most commonly there are 6 members. First there are the category of main, king and queen are there. We just prefer to say that they are the reproductive members of the family. Male king and queen is there, and then substitute king and queen are also there. In some colonies there are only kings, and in some colonies there are both king and queen, and there are soldiers and nasuits and workers also. Workers are there. In some there are nasuits. So there are actually 6 members to 5 to 6 members in different colonies. It depends on a species पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे 6 है या 5 मेंबर्स होंगे. मोस्टली होते हैं 3 टाइप के मेंबर्स देखने को मिलते हैं. विंग्ड अडल्ट होते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट होती है और उसके बाद वर्कर एंड सोल्जर्स होते हैं. नाउ लेट्स गो फॉर द damage they cause. So as these termites are the big pest of wooden things, we can say, so they just cause damage to the wooden material in the home, and they cause high infestation to the furnitures. Basically their food includes the material which is cellulose rich, और वी कैन से ऐसा मटेरियल जिसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, लाइक कार्डबोर्ड्स, वुडन प्लैंक्स, फर्नीचर, मैंगोज, शुगर केन, पोटैटोज़ एंड कोकोनट वगैरह जो भी हो जिनमें सेलुलोज का कंटेंट हाई होता है. ऐसे टाइप के जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, उस पर वो फीड करते हैं. प्लस दे आर ऑल्सो crop pest, or they cause high infestation to the crops of mango, apple, coconut and cotton, potato वगैरह की जो crops हैं उस पर बहुत high infestation करते हैं, and they act as a pest for that. So basically they just attack the वुडन मटेरियल एंड सेलुलोज रिच मटेरियल जिसमें सेलुलोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा. और वो जो टिम्बर होता है, टिम्बर को कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर टनल्स फॉर्म करते हैं. यू कैन जस्ट सी हियर आई हैव सर्टेन डायग्राम्स. सो दे जस्ट फॉर्म, यू कैन सी यहाँ पे उसको हॉलो करके रखा हुआ है. ये देख सकते हो कि टनल टाइप फॉर्म कर लेते हैं वो अंदर, और दे जस्ट प्रेफर टू लिव इन अ कॉलोनीज. और समटाइम्स दे ऑल्सो अटैक ऑन अ डेड बार्क. फर्स्टली दे जस्ट अटैक ऑन अ डेड बार्क एंड देन वो फिर प्लांट के पिट पे अटैक करते हैं, और समटाइम्स वो डैमेज भी कॉज करते हैं टू द रेलवे यार्ड्स टू. रेलवे यार्ड्स में पहले होते थे वुडन प्लैंक्स होते थे, तो वहाँ पे भी वो अटैक करते हैं. वट एवर थिंग दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, वो जब भी सेलुलोज रिच मटेरियल जो भी सॉइल के कांटेक्ट में होता है वहाँ पे इन्फेस्टेशन होता है डेफिनेटली ऑफ टर्माइट्स. नाउ लेट्स just talk about the control measures for termites. So as to get rid of from the termites, one should make cleanliness रखना बहुत ज़रूरी है. और जो वुडन मटेरियल है उनको टच नहीं होने देना है सॉइल से. let those things just not come in contact with the soil or इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर. और प्रोटेक्शन के लिए मोस्टली स्प्रेइंग कर सकते हैं ऑफ 1% ऑफ डाई इल्डरीन
डायल्ड्रीन का जो है डस्टिंग कर सकते, स्प्रेइंग कर सकते हैं। 10% ऑफ BHC का डस्टिंग कर सकते हो। वन कैन यूज़ द डस्ट पाउडर फॉर द डस्टिंग of 10% of BHC, and one more thing is there, 0.5% of DDT suspension or treatment or treated with the 5% of BHC dust can also be effective. क्लोरडेन यूज़ कर सकते हैं टू इन सर्टेन केसेस, जब माउंड इन सेंस जो होम होते हैं, जो टर्माइट्स के कॉलोनीज़ होते हैं उसको माउंड बोला जाता है। जो वो नेस्ट प्रिपेयर करते हैं उसको माउंड बोला जाता है। सो माउंट्स में कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट द बेसिक थिंग वन कैन डू इन अ हाई इन्फेस्टेशन सो एज टू चेक आउट फॉर अ क्वीन, एंड क्वीन को ढूंढकर क्वीन को मारना चाहिए। तब बहुत अच्छे से और इफ़ेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है और दीज कॉलोनीज़, और या फिर जो माउंड है वहाँ पे डायरेक्टली 0.2% ऑफ BHC या डायल्ड्रीन का सल्यूशन पोर कर सकते हैं, उससे डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं। और जो वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डायरेक्टली टच में नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे या तो आप सीमेंट लेयर यूज़ करिए या फिर कोई और अदर मेटालिक मटेरियल यूज़ करिए, सो दैट के वो जो वुडन मटेरियल है वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में ना आए। और जो वुड वर्क है उसको जब कर रहे हैं, वट एवर फर्नीचर्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ वुडन वर्क, द फर्नीचर शुड बी पेंटेड विद द सॉलिग्नम, और जो सॉलिग्नम होता है सॉलिग्नम से उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको पेंट करना चाहिए, और उसके बाद डस्टिंग करनी चाहिए विथ BHC आफ्टर सर्टेन डेज। जब पेंट सूख जाएगा, सॉलिग्नम से जब पेंट कर रहे हो सूखने के बाद उस पर डस्टिंग करनी चाहिए ऑफ BHC। So this is how one can just get rid of from the termites. Or other than that, there are number of materials or number of chemicals available in the market for the treatment of the infestation of termites. टर्माइट से बचने के लिए मार्केट में भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, या फिर आप डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वन कैन कंट्रोल द टर्माइट्स एंड get rid of them. So here the another household pest, that is termites, also ends up. Hopefully you have understood it. Thanks for watching. Have a nice day.